اللہ کی رحمت کبھی تمہاری حالت پر نہیں، تمہارے یقین پر اترتی ہے۔ جب زبان خاموش ہو جائے اور آنکھوں سے دعا نکلے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دل اتنا ٹوٹتا ہے کہ بندہ مسکرانا بھی سیکھ لیتا ہے۔ وہ لوگ قیمتی ہوتے ہیں جو تمہیں لفظوں کے بغیر بھی سمجھ لیں۔ دعائیں وہ طاقت رکھتی ہیں جو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ جتنا زیادہ تم صبر کرو گے اتنا ہی زیادہ رب تمہیں عطا کرے گا۔ شکر گزاری سکون کا پہلا قدم ہے۔ سب کچھ کھو کر جو بندہ رب کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ جتنا تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے رب تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ صبر کی مٹھاس آخری لمحے میں محسوس ہوتی ہے، پہلے صرف درد ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب آنکھیں نم ہوں اور زبان خاموش۔ جو لوگ دل سے دعا مانگتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب دل کی آواز خاموش ہو جائے تو صرف اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر درد ایک سبق دیتا ہے اور ہر سبق رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ وہ لوگ کبھی نہیں ہارتے جو دل سے رب کو پکارنا جانتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت آنے پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر زندگی میں آتے ہیں اور کچھ صبر بن کر چلے جاتے ہیں۔ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، صرف سبق دینے کے لیے آتا ہے۔ سچے لوگ اکثر تنہا ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولنا نہیں سیکھتے۔ وہ آنکھیں بہت قیمتی ہوتی ہیں جو خاموشی سے سب کچھ سمجھ لیتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے الفاظ سے نہیں خاموشی سے بکھر جاتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن ان لمحوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم کبھی واپس نہیں لا سکتے۔ عزت وہ خزانہ ہے جو ایک بار لٹ جائے تو واپس نہیں آتا۔ جن دلوں کو محبت کی طلب ہوتی ہے وہ نفرتوں میں بھی اپنا حصہ ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے الفاظ سے نہیں رویے سے زخم دیتے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو خاموشی ہی بہترین پناہ گاہ ہوتی ہے۔ جو خواب صرف دل دیکھتا ہے وہی سب سے سچے ہوتے ہیں۔ سب کچھ پا لینے کے بعد جو خالی پن ہوتا ہے وہ سب سے وزنی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کسی کی قدر کرنی ہے تو اس وقت کرو جب وہ تمہارے ساتھ ہے۔ رشتے خون سے نہیں سلوک سے جیتے جاتے ہیں۔ محبت جب خاموش ہو جائے تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ کچھ تعلقات صرف دل میں رہنے کے لیے ہوتے ہیں، زندگی میں نہیں۔ عزت دینے والا انسان کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا انتظار تمہیں صبر سکھا دے تو وہ رشتہ سچا ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جیت تب ہوتی ہے جب وہ اپنی خاموشی سے جواب دے۔ کچھ رشتے زخم دے کر بھی دل کے قریب ہوتے ہیں۔ دعا میں مانگے گئے لوگ کبھی نہ کبھی لوٹ آتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ وہ سبق دیتی ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتے۔ جس نے تمہیں بغیر فائدے کے چاہا وہی تمہارا اپنا ہے۔
जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ तो तुम्हें सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। कुछ जुदाइयां दिल से नहीं, रूह से लिखी जाती हैं। बाज रिश्ते खामोशी में भी चीख चीख कर साथ मांगते हैं। हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती, बाज औकात ये दिल की चुप होती है। यादें वो मेहमान हैं जो बुलाए बगैर भी आ जाया करती हैं। दिल टूटने की आवाज सुनाई नहीं देती, मगर उम्र भर गूंजती रहती है। कुछ लोग हमें खुद से ज्यादा पहचान लेते हैं और फिर हमें छोड़ जाते हैं। जो दुख लफ्जों में ना उतरे वो शायरी बन जाते हैं। वक्त सब कुछ छीन लेता है, मगर एहसासात की खुशबू रहने देता है। बिछड़ने वाले अक्सर वो होते हैं जो रूह के करीब तरीन होते हैं। दिल जब बेकरार हो तो दुआओं में लफ्ज नहीं, आंखों से बात होती है। जो आंसू रात की तन्हाई में बहते हैं वो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। जो दिल टूटा होता है वो ज्यादा दुआ मांगता है और अल्लाह से ज्यादा करीब होता है। जब तुम्हें तन्हाई में अल्लाह याद आ जाए तो समझ लो तुम्हारा रिश्ता अब उससे जुड़ चुका है। कभी किसी के आंसू को मामूली ना समझो, वो अंदर का तूफान होता है। दुख सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने तन्हाई की रातों में खुद को संभाला हो। सब्र वो दुआ है जो खामोशी से अर्श तक पहुंचती है। मोहब्बत वही खूबसूरत है जो रब के लिए हो। जो दुख तुम्हें रब के करीब ले जाए वो सबसे कीमती दुख है। दिल जब सजदे में गिरता है तो जिंदगी संवर जाती है। रब की राह में उठाया गया हर कदम तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाता है। इंसान का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ और सिर्फ उसका रब होता है। खामोशी कभी कभी वो चीख होती है जो सिर्फ दिल सुनता है। हर शख्स अपनी कहानी का मरकजी किरदार होता है, मगर दूसरों के लिए सिर्फ एक सफा। तुम जिसे नजरअंदाज कर रहे हो वही किसी दिन तुम्हारी कमी बन जाएगा। असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, बर्दाश्त में छुपी होती है। अल्लाह तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें जाना चाहिए, ना कि जहां तुम जाना चाहते हो। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो रब तुम्हें थाम लेता है। जो खुद को बेहतर बनाने में लगा हो उसे दूसरों की खामियां दिखाई नहीं देती। हर बार दिल टूटता है, रब से ताल्लुक मजबूत होता है। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो सजदे का दर खुलता है। अल्लाह तुम्हें कभी तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। सुकून की तलाश में अक्सर लोग शोर की तरफ चले जाते हैं। अपनी टूट फूट को रब के हवाले कर दो, वो सब जोड़ देता है। खुशनसीब वो होते हैं जो रूठ कर भी रिश्ते निभाते हैं। तुम्हारे लफ्ज लोग भूल जाएंगे, मगर तुम्हारा रवैया हमेशा याद रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में अगर तुम्हारा नाम हो तो वही असल मोहब्बत है। दिल के करीब आना आसान है, मगर दिल में रहना कमाल है। यकीन रखो मगर कब तक,
ये 3 निशानियां तुम्हें सब कुछ समझा देंगी। नंबर 1, जब तुम हर दर बंद होने के बाद भी ना उम्मीद ना हो सको तो समझ लो कि तुम्हारा यकीन खालिस है और अल्लाह तुम्हें आजमा नहीं बुलंद कर रहा है। नंबर 2, जब दिल बार बार टूटे मगर तुम रब से जुड़े रहो तो ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे सब्र में वो ताकत है जो तकदीर को बदल सकती है। नंबर 3, जब तुम बगैर किसी नतीजे के भी नेकी करते जाओ तो जान लो तुम्हारा यकीन इम्तिहान में है और इनाम करीब है। कुछ जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते, वो आंखों से बोलते हैं। कुछ जख्म लफ्जों से नहीं, खामोशियों से चीखते हैं। जो लोग तुम्हें खामोशी में भी समझें, वो नेमत होते हैं। अल्लाह वही देता है जो तुम्हें संवार दे, और जो तुम्हें बिगाड़ दे वो कभी नहीं देता। जिसने अल्लाह के रास्ते पर चलना सीख लिया वो कभी गुमराह नहीं होता। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये 5 वजूहात जान लो। नंबर 1, दिल की नीयत साफ नहीं। अगर दिल में किसी दूसरे के लिए बदगुमानी या बुग़्ज़ हो तो दुआ का असर कमजोर पड़ सकता है। अल्लाह ताला दिल की सफाई को देखता है। नंबर 2, गुनाह और नाफरमानी। अगर इंसान मुसलसल गुनाह कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा तो अल्लाह की रहमत में रुकावट आ सकती है। नंबर 3, सब्र की कमी। दुआ के बाद फौरन जवाब की तवक्को करना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो सकता है। अल्लाह ताला का वक़्त बेहतरीन होता है और सब्र के साथ दुआ करना जरूरी है। नंबर 4, नीयत का मकसद। अगर दुआ का मकसद सिर्फ दुनियावी फायदा हो और अल्लाह की रजा का मकसद ना हो तो दुआ में कबूलियत का दरवाजा बंद हो सकता है। नंबर 5, अल्लाह की मर्जी। कभी अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी तकदीर के मुताबिक बेहतर चीज देने के लिए दुआ का जवाब नहीं देता। ये सिर्फ उसकी हिकमत और रहमत का हिस्सा होता है। अपने दुख रब के सामने बयान करो, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। तन्हाई का शोर अक्सर महफिलों की खामोशी से ज्यादा तकलीफ देता है। कभी कभी लफ्ज नहीं, सिर्फ नजर ही हाले दिल कह जाती है। कुछ ख्वाब सिर्फ आंखों में नहीं, सांसों में बसेरा करते हैं। सजदे के आंसू क्यों सबसे ताकतवर होते हैं, ये 5 राज जान लो। नंबर 1, ये आंसू दूसरों के सामने नहीं, सिर्फ रब के सामने बहते हैं, इसलिए इनमें दुख नहीं, खुलूस होता है। नंबर 2, सजदे का आंसू दिल से निकलता है, दिखावा नहीं होता। यही इसे सबसे ज्यादा सच्चा और वजनी बनाता है। नंबर 3, ये आंसू सिर्फ गम का नहीं, आजिज़ी, मोहब्बत और उम्मीद का भी होता है, और रब को बंदे की यही हालत सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर 4, जब इंसान सबसे हार जाए तब सजदे में गिरकर रोता है, और वही लम्हा उसकी असल फतह का आगाज बन जाता है। नंबर 5, ये वो आंसू हैं जिन्हें कोई और नहीं देखता, लेकिन अल्लाह पूरी कायनात का निजाम उनके बदले में बदल देता है। वो बातें जो कही ना गईं, हमेशा सबसे ज्यादा
याद रहती हैं। कभी किसी की खामोशी को मामूली ना समझना, वो अंदर की सबसे बुलंद चीख हो सकती है। जिंदगी में कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ रब का जिक्र भर सकता है। किसी को खोना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितना खुद को खो देना होता है। जो बातें हम कह नहीं सकते वही सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। वो लोग खास होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे खामोश लम्हों में समझ लें।